Hello and welcome to the State of Culture. Spring is in the air and so are festivals. After a brief hiatus, they are back again. We report on a dance and music festival and a play organized by one of the oldest and most distinguished associations in the capital. अरे क्या मुसीबत डाल दी तुम दोनों ने मेरी जान को? फिर क्या बात हो गई डैडी? अरे बेटा, तुमने कहा कि मेहमानों के सामने में अंग्रेजी में बात करना। सुबह से तुम्हारी अम्मा को अंग्रेजी का कायदा सिखा रहा हूं। मैंने कहा बोल A for apple, तो कहती नहीं जी A for आलू। मैंने कहा अच्छा बोल B for ball, कहती नहीं लाला B for the bangles होता है। मैंने कहा तू हलवाइन की हलवाइन रहेगी। फिर झक मारकर मैंने कहा कम से कम मेहमानों के सामने मुझे लाला कह के ना बुलाइयो, हेलो डार्लिंग बोल दियो। तो पता है क्या कहती है? हेलो दार्जिलिंग। One of the most prominent schools in India, the Modern School, has an old students association that is 52 years old and a modernized theatre group that is as old. Veterans and juniors combine each year to present a play, which is an annual 5 decades old tradition. Masosa is a very vibrant organization of over 15,000 modernites. It's an influx of bonding which modernites have, which has been there for years, which brings us together in whatever it is, whether it's an hour of crisis, whether it's a moment of celebration. Whatever money is collected through this goes for the Modernite Scholarship Fund, where children who cannot afford education in modern school are given an opportunity to do so. This year, the association presented Bade Aadmi, written by Ramesh Mehta, who used to be a household name in the 60s. His plays that were regularly performed in the old Sapru house suddenly disappeared from the scene with the advent of television. Comedies, with a comment on Indian society, the plays have found relevance again, thanks to the Three Arts Club Theatre Group, which had associated closely with the playwright in his heydays, and its president Anuradha Dhar. अरे वो इसलिए कि तो पूरी तरह से सीख नहीं पाई है। ओहो, तुमसे तो ज्यादा ही सीख चुकी हूँ। अरे कहाँ सीख चुकी है? 20 दफा समझाया है, सूप पीते हुए सुड़ुप सुड़ुप की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो अब कहाँ आती है? अरे क्यों नहीं आती है? कल ही शाम को ऐसे आवाजें निकाल रही थी जैसे बगल वाला का टॉमी तश्तरी में दूध पीते हुए निकालता है। Sorry to disturb you, Daddy. पर ये नए सूट पर आपने क्या गिरा दिया? The play was performed before a packed house of appreciative audience at the Sri Ram Center, Monday House, New Delhi. हाथ लड़खड़ा गया तो वो कांटे की जगह छुरी नाक से टकरा गई और निवाला गोद में आ गिरा। लो, सुन लो, मुझे सूप पीना नहीं आता, ये नाक से लंच खाने वाला अंग्रेज देख लो। बहुत अच्छी मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अंग्रेज। यस, अंगूठे वाला। एग्जैक्टली। तुम दोनों भाई बहन तो इस घर का दीवाला निकालने पर तुले हुए हो। अरे भगवान, दीवाला तो मेरी अकल का निकल रहा है। फिर क्या बात हो गई डैडी? लो पढ़ लो इस रुक्के को। किसका रुका है? अरे इंदिरा के होने वाले ससुर का। अशोक के डैडी का? कौन लाया है? अरे टैक्सी वाला दे गया अभी। अरे क्या लिखा है इसमें? लिखा है बनकर लिखा है कि यहाँ से 20 मील दूर उनकी गाड़ी खराब हो गई है और लिखते हैं हमें आओ और ले जाओ। तो क्या वो आज ही आ रहे हैं? अरे बेटा आज नहीं बल्कि अभी आ रहे हैं। The story is a hilarious look at hypocrisy that is deeply rooted in India's middle class. A family of 4 pretend to be what they are not. In a spree to impress the other, they outdo one another, only to be caught out in the end. The tendency to show off in the middle kind of income groups, the greed, the lure of the money. So they are still relevant. The greed is still there, the lure of money is still there, the tendency to show off still there. So like they'll still be relevant. एक महीने के लिए इनको मैके भेज देते हैं। मैके? अरे मैके जाए मेरी जूती। मैं अपने घर की चाबियां नौकरों के हवाले करके नहीं जाने वाली, समझे? तो मम्मी को गूंगा बना देते हैं। हाँ, ठीक है। हम बोल देंगे कि मम्मी को स्वाइन फ्लू हो गया और उनकी आवाज चली गई। अबे चुप। अरे कोई अकल का अंधा ही एक गूंगी बेटी से शादी करेगा, अकलमंद नहीं। हाँ तो फिर क्या करे डैडी? छोटे साहब किचन में नहीं आया, आपका इंतजार कर रहे हैं। उसे बोलो 15 दिन बाद आए, हमें अभी आया की जरूरत नहीं। जी अच्छा। ठहरो, जरूरत क्यों नहीं? बहुत सख्त जरूरत है, मगर उसकी नहीं। उससे कहो फौरन चली जाए। जी अच्छा। ये रही हमारी नई आया। भाई घर की चाबियां भी संभालेगी और मनमानी अंग्रेजी में बात करेगी। आया? कभी नहीं। अरे व्हाई नॉट दार्जिलिंग? वो लोग आ गए मेम साहब,
मेम साहब नहीं, आया कहो डेविड, वरना तुम्हारे भी पैसे काट दिए जाएंगे। सॉरी मिस और मम्मी, मम्मी याद रखना आप आए हो और आपका नाम है, पता है, जसोदा। लीजिए आपका बटुआ। अच्छा सुनो, कहिए। तुम्हारा पति भी क्या यही काम करता है? मेरा पति? हाँ हाँ, तुम्हारा पति। जी बात ये है मेम साहब, मेरे पति ने तो मुझे छोड़ रखा है। छोड़ रखा है? जी। क्यों? कि क्या बताऊं, हमारी फूटी किस्मत, जीती जागती पे सौत ले आया है। ओह, सौत ले आया है। फिर तो निहायती कमीना आदमी मालूम होता है लाल साहब। अच्छा, ये कहती है कि वो बहुत कमीना है, लेकिन वो कहता है कि ये महा नीच है। आया आया, किचन में जाकर गौरी दत्त का हाथ बढ़ाओ, वो अकेला काम कर रहा है। आती हूँ डेविड। अच्छी चीजों की परख मैंने ही सिखाई है अशोक को। भाई जरूर जरूर, इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। चाय में इस पर लगा दिया बड़े साहब। अच्छा डेविड, आइए प्रसाद साहब, चल के चाय पीते हैं। चलिए आइए सुशीला जी। अगर आपको एतराज ना हो लाल साहब, तो मैं और इंदिरा यही चाय पी लें। हाँ हाँ बेटा, मैं यही भिजवा देता हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया। जिंदगी में आज पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ इंदिरा, फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे जन्म जन्म से तुम्हें जानता हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। आप नहीं, तुम तो। आपने मुझे याद किया छोटे साहब? हाँ देखो आया मम्मी, बाहर साहब लोगों का ड्राइवर बैठा होगा, उसे जाके चाय पिला दो। मैं चाय पिलाऊंगी ड्राइवर को? अच्छा जी। जी क्या नाम है आपके ड्राइवर का? बताइए ना, बोलिए ना। कन्हैया। कन्हैया। और सुनो, चाय बड़े प्यार से पिलाना। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए आया मम्मी। जी नहीं मेम साहब, कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे तो मेरा नाम जसोदा है, लेकिन कन्हैया जी को चाय में राधा बन के पिलाऊं। कहाँ हो मेरी राधा? मक्खनलाल इधर आओ। तीसरी बात उसने तुम्हारे लिए बताई थी। मेरे लिए बताई थी? हाँ हाँ बाबा, तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे कैसे जानता है? अपनी ज्योतिष विद्या से। कहने लगा तुम्हारा एक मामा है जिसका नाम म से शुरू होता है। मां से मक्खनलाल कहने लगा उसे कम से कम 50 लाख का मुनाफा होगा। 50 लाख का मुनाफा मुझे होगा। लेकिन इसके लिए एक तरकीब लानी पड़ेगी तुम्हें। वो क्या है जीजा? भाई वो एक हफ्ते के लिए तुम्हें इस घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा। अजी मैं 2 हफ्ते के लिए नौकर बन के रहूंगा, मुनाफे की बात करो जीजा। और अपनी दीदी को दीदी नहीं आया समझना होगा। मैं उसको आया की भी छाया समझूंगा। आप करोड़ों की बात करो जीजा। फिर तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया मक्खनलाल। डैडी वो लोग आ गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर उनका स्वागत करो। और हाँ, डेविड को बता देना हमारा नया नौकर मक्खनलाल आ गया है। जी अच्छा। कॉफी ले लीजिए छोटे साहब। हाँ, आया मम्मी को पता होगा इस बात का। कौन सी बात का सरकार? यही कि हमारी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी। हाँ हाँ, मुझे तो जरूर पता है। मरने के 4 दिन बाद बताया था हकीम जी ने कि असल बीमारी क्या थी। क्या नाम बताया था हकीम जी ने? आयुर्वेदिक में उसे कहते हैं हर्निया परनिया, और यूनानी में जाने का मालूम। वेरी इडियोटिक नेम्स। दरअसल देसी हिकमत में नाम ऐसे ही होते हैं कमलेश। अच्छा, तो उस बीमारी में हो क्या जाता है आया? प्राण हरण हो जाते हैं और जान भी निकल जाती है। छोड़ो इन बातों को आया मम्मी, इनसे मिलो। यह कमलेश, इस घर की होने वाली नई मालकिन। तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। साक्षात देवी का रूप दिखाई देती है। आया, आज तो तुमने कह दिया, आइंदा से मुझे ये देवी सेवी मत कहना। सब नफरत है मुझे इन बातों से। ठीक है आया मम्मी, आगे से ये देवी सेवी मत कहना। मैडम को सिर्फ मिस साहब ही कहा करो। हाँ हाँ जरूर, और शादी के बाद तो कहना होगा मेम साहब। अभी जानने की कोई जरूरत नहीं, उस वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, वो तब सोच लिया जाएगा। घर की मालकिन जिंदा ना हो बेटा, वहाँ के नौकर हमेशा बातूनी और मुंहफट होते हैं। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, नाराज होकर निकाल देना कोई अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं राजा साहब। What was significant about the production was that while the oldest actor was from the 1958 batch of students, the youngest was a recent graduate. I started in 1960 with the first play, and I think I've approximately almost 25 plays since then.
उस ज़माने में हम खुद ही we used to make our own sets, our own posters by hand. I used to do everything myself. I am a 1958 batch. Up and with the 2006, 2007 batches, we don't feel any difference at all. It is like a large extended family. So to that extent, nothing has changed. The performance acquired significance also in that it is being staged during the 100th birth anniversary of the school's legendary principal, the late Padma Shri M.N. Kapoor. I am whatever I am because of Mr. Kapoor. If he hadn't been around, I don't think I would be standing here in front of you and saying anything. वो है ना कबीर का दोहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए. That was Mr. Kapoor. The next play will be held in 2012. हम दोनों उजड़े हुए थिएटर के बेरोजगार कलाकार हैं। अशोक को माँ बाप की जरूरत थी और हमें पैसों की। अभी इसी ने कहा था कि आप दोनों नाराज होकर चले जाइए, मैं घर जमाई बनकर रह लूंगा। अब जो सलूक आप हमारे साथ करना चाहे कर सकते हैं। सलूक? दुहाई लाल साहब, ये रिश्ता राजा साहब ध्यान नहीं हो सकता। मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक खराबी नहीं कर सकता। वो राजा नहीं है। क्या कह रहे हो वकील लाल? हाँ, बादल साहब ने उसको देखते ही पहचान लिया। वो रायगढ़ के एक अस्पताल में कंपाउंडर है राजा राम। कंपाउंडर है? अजी कंपाउंडर तो मैं आज से 10 साल पहले था, अब तो मैं राजा राम कॉन्ट्रैक्टर हूँ। राजा राम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। अजी सुरेश कलमाजी के बड़े काम कराए मैंने। और ये राजा साहब का खिताब तो आपके बेटे ने मुझे चिट्ठियों में दिया था, हम तो खाली निभाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ गया। भाई आप भी हमारी बिरादरी के आदमी हैं, बड़े आदमी। भाई मुझे ये दोनों रिश्ते मंजूर हैं। आओ बच्चों, अंदर चले आओ, इनसे मिलिए। ये मेरी धर्म पत्नी हैं, रत्नी जी। आया नहीं? और ये मेरे साले साहब हैं, मक्खन लाल, नौकर नहीं। खाना तैयार है बड़े साहब? हम भी तैयार हैं डेविड, लेकिन खाना आज हम मेज कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठ के खाएंगे। जी अच्छा। We're going in for a brief break. Don't go away.